ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے پوڈ کاسٹ کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے جو ہمارے چینل 10 اسپوک ماسٹر پر اپلوڈ ہونا شروع ہو چکی ہے۔ چینل کا نام بھی اب ہم نے عیشا پوڈ کاسٹ رکھا ہے۔ یہ پوڈ کاسٹ آپ سن سکتے ہیں۔ چینل کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور پہلے کمنٹ میں بھی یہ لنک آپ کو مل جائے گا۔ چینل کو ضرور وزٹ کریں۔ آئیے اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ بنیادی جاننا بس ایک ہے، تم کون ہو، تم کیا ہو سکتے ہو، کیا بن سکتے ہو، تم کہاں تک جا سکتے ہو، تم میں چھپے امکانات کیا کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں طے ہوتی ہیں تب جب تم جان لیتے ہو کہ تم کیا ہو۔ اب یہ ہے بنیادی سوال، میں کون؟ Who I am۔ پہلی چیز جس کو تم کہتے ہو وہ ہے تمہارا جسم۔ خود سے پوچھیے، کیا تم یہ جسم ہو؟ اس سوال کا پہلا جواب جو بڑا دلچسپ ہے وہ آپ کی زبان میں ہی چھپا ہے۔ تم کہتے ہو یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرا پیر ہے، یہ میرا منہ ہے، یہ میرا جسم ہے۔ اگر تمہارا جسم ہوتے تو یہ کہنے کی توقع نہیں تھی کہ میرا جسم میں میرا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں اور میرے میں دو چیزیں ہیں۔ میں نے کہا یہ میرا کمپیوٹر ہے، یہ میرا موبائل ہے، یہ میرا گھر ہے۔ ان فکروں سے ذرا سا بھی یہ مطلب کوئی نہیں نکالتا کہ میں کمپیوٹر ہوں یا میں موبائل ہوں یا میں گھر ہوں۔ لیکن یہی اصول تم جسم اور دماغ پر کیوں لاگو نہیں کر پاتے؟ تم سارا دن کہتے ہو میرا جسم، میرا دماغ، مگر میں اور میرے کے درمیان وہ گیپ وہاں کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ اس گیپ کے خاتمے کا نام ہے آئیڈینٹیفیکیشن۔ کسی چیز سے تم نے خود کو نتھے کر دیا۔ تمہارے جسم کو بھوک لگتی ہے تو تم کہتے ہو مجھے بھوک لگی۔ یہ فکرہ سائنٹیفکلی غلط ہے۔ اصل میں میرے جسم کو بھوک لگتی ہے، جبکہ میں تو وہ ہوں جس کا یہ جسم ہے، اور وہ جس کا یہ جسم ہے وہ بھوک اور پیاس کی ڈومین سے باہر ہے۔ جسم سے آئیڈینٹیفیکیشن کو توڑنے کی دوسری تفہیم یہ ہو سکتی ہے کہ یوں سوال کریں، اگر تم جسم ہو تو کون سا جسم؟ وہ جسم جو تب تھا جب تم 2 دن کے تھے، یا وہ جسم جو اس وقت تمہارے پاس ہے؟ وہ جسم کے جو اس وقت تمہارے پاس تھا جب تم 2 سال کے تھے، یا وہ جسم جو تب تم کو حاصل تھا جب تم 20 سال کے تھے، یا وہ جسم جو بڑھاپے میں تمہارے پاس ہوتا ہے؟ کون سا جسم؟ اگر تم جسم ہو تو پھر ہر وقت ہی تم مختلف ہو۔ تمہارا پھر کوئی ماضی، حال، مستقبل نہیں ہونا چاہیے۔ پھر تم ہر لمحے بدل رہے ایک مظہر ہو، ایک فینومینا۔ لیکن کیا کبھی تم کو اس بات پر حیرت نہیں ہوتی کہ جب تم 10 سال کے تھے تو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر جس کو دیکھتے تھے اس کو میں کہتے تھے؟ جب تم 80 سال کے ہوتے ہو اس وقت بھی شیشے میں خود کو دیکھ کر میں کہتے ہو، حالانکہ شیشے میں نظر آنے والا جسم بالکل ہی الگ ہے، مختلف نوعیت کا ہے۔ اب ذرا یہ تم سوچو، کون ہے جو 10 سال اور 80 سال کے بالکل ہی مختلف جسموں میں ایک ہی میں کو دیکھ پا رہا ہے؟ وہ دیکھنے والا کوئی اور ہے، یہ اویئرنیس کہیں اور ہے جو اس جسم سے خود کو جوڑ رہا ہے، شناخت کر کے دکھا رہا ہے۔ کیونکہ اگر آپ جسم ہوتے تو ایک جسم کے ساتھ ہی خود کو شناخت کر سکتے تھے۔ تیسرے پہلو سے یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ آپ جسم ہو یا نہیں ہو۔ اگر تم جسم ہو تو وہ لوگ جو پیدائشی طور پر کسی عضو سے محروم ہوتے ہیں، جیسے کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا یا ٹانگ نہیں ہوتی، تو انہیں ٹیکنیکلی خود کو کم انسان سمجھنا چاہیے۔ اب تم کسی بھی معذور شخص کو پوچھ لینا کہ کیا وہ زندگی کے اپنے تجربے کو
आधा अधूरा कहता है, पौना कहता है। क्या वो कहता है कि मैं 25% इंसान हूँ या 50% इंसान हूँ? कितना भी जिस्म, तुम में कोई है जो हर वक्त पूरा है, कामिल है, मुकम्मल है। इन सारे पॉइंट्स को अगर सामने रखा जाए तो एक चीज तो जरूर साबित होती है कि तुम्हारा जिस्म नहीं हो, तुम वो हो जिसका ये जिस्म है। अब दूसरे पहलू से खुद को समझने की कोशिश करो। दूसरी गहरी तरीन आइडेंटिफिकेशन है माइंड से आइडेंटिफिकेशन। हालांकि जबान को यहां भी गौर से देखें तो आप हमेशा यही कहते हो, मेरा दिमाग ये सोच रहा है, मेरे दिमाग में ये चल रहा है, मेरा दिमाग ये कहता है। यहाँ भी मैं और मेरा की तकसीम मौजूद है, जिसमें मैं मालिक है और मेरा मिल्कियत है, और मिल्कियत कभी मालिक नहीं हो सकती। दूसरी बात ये कि उसी जिस्म वाली मिसाल को यहाँ अप्लाई करो और पूछो खुद से, क्या मैं मेरा दिमाग हूँ? अगर तुम्हारा दिमाग हो तो कौन सा दिमाग? 7 साल के बच्चे का दिमाग जो खिलौने और चंद टाफियां मांग रहा था, या वो जवानी का दिमाग जिसमें जिनसे मुखालिफ की कशिश दीवाना किए जा रही थी, या वो दिमाग जो घर, नौकरी, फैमिली के मसाइल में उलझा था, या फिर वो जो आखिरी उम्र में मौत, मजहब और मौत के बाद की जिंदगी के ख्यालात में उलझा था। क्या तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगती कि 10 साल के बच्चे के दिमाग और 80 साल के बूढ़े के दिमाग में काम कर रहे सारे एक्टिव नर्व कनेक्शन मुख्तलिफ इजहार कर रहे होते हैं, मगर तब भी कोई मौजूद होता है जो 10 साल की उम्र में भी तुमको तुम के तौर पर देख रहा होता है, और 80 साल की उम्र में बिल्कुल ही मुख्तलिफ सोचों के बावजूद तुमको तुम कहता है। तीसरी चीज ये कि कोई दिमाग ज़हीन होता है, चीज़ें ज़्यादा याद कर लेता है, मेमोरी अच्छी होती है, तो कोई गबी होता है, इंफॉर्मेशन कम होती है, मेमोरी कमज़ोर होती है। लेकिन तुम इस बुनियाद पर भी कभी खुद को कम नहीं समझते, हत्ता कि बतौर ज़िंदगी का तजर्बा वो भी खुद को कम नहीं समझता कि जो दिमागी तौर पर मखबूतुल हवास हो। इस सारी बहस से एक ही चीज़ साबित होती है, और वो ये कि तुम्हारा दिमाग भी नहीं हो। अब अगर मैं मेरा जिस्म भी नहीं और मैं मेरा दिमाग भी नहीं, तो बुनियादी सवाल फिर बनता है, मैं कौन हूँ? समझो, जिसे तुम मैं कहते हो, ये जो तुम्हारी अना है, ये होस्ट है, एक ऐसा भूत जो ना होने के बावजूद भी है और इतनी शिद्दत से है कि अनरियल होने के बावजूद ये तुम्हारी सारी रियलिटी पर हावी है। अना तुम पर तारी एक धुंध का नाम है, एक ऐसी धुंध जिसका वाहिद मकसद बस एक है कि इस धुंध को ही तुम अपना आप समझ लो। इस धुंध के नीचे मौजूद जो रियल तुम हो वो कहीं नजर ना आ जाए। गौर से अपनी जिंदगी को देखना, हर वक्त एक हड़बड़ी है, एक शोर है, हर वक्त हलचल है, मसरूफियत है जिसमें तुम उलझे हो या उलझे रहना चाहते हो। ये सारी मसरूफियतें, ये सारा शोर, गौर करना, ये सिर्फ तुम्हारे सर्वाइवल की ज़रूरियात के लिए नहीं होता, क्योंकि सर्वाइवल की ज़रूरतें तो बहुत ही थोड़ी सी हैं, बहुत ही महदूद। बाकी तमाम जानदारों को देखें, उनकी ज़िंदगी का एक बहुत ही मुख्तसर सा वक्त शिकार या घास चरने या दाना दुनका जमा करने में खर्च होता है, जबकि बाकी वक्त वो सुकून से स्टिल बैठे रहते हैं। लेकिन तुम इंसान को देखो, इसे अगर सुकून से बैठना पड़ जाए तब इसकी बेचैनी और सिवा होती है। दिमाग मुसलसल किसी मकसद के पीछे दौड़ाए रखता है, कोई गोल है जो तुमने पाना है, तुम हर वक्त कहीं पहुंचना चाहते हो। आखिर इस दौर का क्या मकसद हो सकता है? सर्वाइवल तो नहीं है। और मज़े की बात क्या है? मज़े की बात यह है कि जो पाने तुम निकलते हो वो पा भी लो, फिर भी तुम बैठ नहीं सकते, फिर भी दौड़ जारी रहती है, और कब्र तक ये दौड़ जारी रहती है। अना को समझो,
अना खुद को जोड़ती है, शनाख्त करती है चीज़ों से, हैविंग से, लेकिन कभी तुमने गौर किया कि चीज़ों के होने से ईगो जो इत्मीनान कशीद करती है वो बहुत ही सतही सा होता है और आर्जी होता है, टेम्परेरी। उसके अंदर ही अदम इत्मीनान का, नामुकम्मल होने का, तिश्ना होने का, नॉट इनफ होने का, काफ़ी ना होने का गहरा एहसास हमेशा कायम रहता है। तुम कुछ बड़े से बड़ा भी पालो, अना कहती है कि नहीं अभी काफ़ी नहीं। गौर करें तो अना की बात समझ लेंगे कि कुछ भी तुम पालो, कुछ भी खरीद लो, अना की तिश्नगी मिट नहीं सकती। ये तिश्नगी, ये किल्लत का एहसास ही है जो अना को मुतहर्रिक रखता है, उसे मजबूत करता है। कभी नोट किया, कोई बड़ी से बड़ी मंजिल भी तुम पालो, कोई ऊंचा से ऊंचा ओहदा भी पालो, अच्छे से अच्छा भी घर बना लो, महंगी से महंगी गाड़ी रख लो, फिर कुछ अरसे बाद वो आर्जियत बना मज़ीद की चाहत में गुम हो जाता है। ये मज़ीद की नफ्सियाती ज़रूरत, मतलब कुछ और चीज़ें कि जिसके साथ तुम खुद को आइडेंटिफाई कर सको, ये बिल्कुल नशे जैसी एक ज़रूरत है। ये तुम्हारी ज़ात का, बीइंग का, होने का, हस्ती का कतन भी तकाजा नहीं है। अना तुम्हारी हस्ती की झील पर मौजूद बस लहरों का नाम है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि तुम अपनी हस्ती की साकित झील को देख ना सको, हस्ती की साकित झील का आईना तुम्हें नजर ना आ जाए। ये लहरें ना होने के बावजूद भी झील पर इतनी धुंध तारी कर सकती हैं कि सच का चांद हजारों टुकड़ों में बट जाता है। जब ये लहरें थम जाती हैं तो झील आईना बन जाती है, जिसमें रियलिटी का चांद साफ देखा जा सकता है। अनाई दिमाग जब रुक जाता है, कंट्रोल में आ जाता है, तो तुम भी वही झील होते हो जिसमें सच का चांद साफ नजर आता है। लेकिन जब हस्ती की झील पर अना की लहरें फैली होती हैं तो चांद सैकड़ों हजारों टुकड़ों में बट जाता है। फिर तुम एक टुकड़े को पकड़ते हो, उसे सच समझते हो, उसे हकीकत जानते हो। फिर कुछ अरसे बाद लहरों की नेचर बदल गई तो चांद के टुकड़ों की पोजीशन भी बदल गई। मैं कौन हूँ, इस हकीकत को जानने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, और वो ये कि तुम हस्ती की झील अना की लहरों से आज़ाद हो जाओ।